चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट वीक है। गुड मॉर्निंग। रुक जा, तुझे ऑन स्टेज लेते हैं। ब्रिंग टू स्टेज क्या? आ बाबा, चलिए कल वाला डिस्कशन जो करा था हम लोगों ने, तो आज तो लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आज दो चीज पढ़ेंगे। पहला चीज जो पढ़ेंगे दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस और एमआरएनए साइलेंसिंग, और सेकंड जो पढ़ेंगे दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं आरएनए इंटरफेरेंस और एमआरएनए साइलेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस और एमआरएनए साइलेंसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। लेट्स गेट ऑन विद द डिस्कशन। सो एक्चुअली क्या होता है बेटा, निमाटोड माने प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस बोलते एस्केलमिंथस, निमाटोड और एस्केलमिंथस जिसका नाम है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। Melodigyne incognitia. Now this nematode is a parasite infecting plants. So it's a parasite infecting the roots of Nicotiana tabacum, that is tobacco plant. So this infects the tobacco plant which is Nicotiana tabacum. ठीक है, अब ये निकोटियाना टेबेकम जो टोबैको प्लांट है, अच्छा इसको थोड़ा जूम करे, रुक जा एक सेकंड। So Nicotiana tabacum is the name of the tobacco plant, and then what happens is this particular plant, इसका जो yield है वो reduce हो जाता है. That means if this is the tobacco plant, उसका ये if this is a root का जो cell है, हालांकि एक सेकेंड, तो निकोटियाना tabacum का जो plant cell है, ये सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर this is the DNA. What Melodigyne incognitia does? So Melodigyne incognitia, Melodigyne incognitia, इसका जो genetic material है, this material is when it infects the tobacco plant, the roots of the tobacco plant, then what happens is it inserts its genetic material. So it infects Melodigyne incognitia is present here. Now it is injecting its genetic material inside it, and ultimately these two will fuse, these two will integrate to form a harmful DNA. From there it will form an RNA, and from here it will ultimately undergo harmful protein synthesis. So protein synthesis will be harmful, and this protein will inhibit the growth of tobacco plant. Am I clear?
So due to the infects and produces harmful protein inside the host, and therefore and thus will inhibit the growth and hence the yield of the plant. ये है टोटल गेम. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अ पर्टिकुलर डीएनए और डायरेक्टली एन आरएनए, जो आरएनए इस हार्मफुल आरएनए के साथ एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा. So it will exactly complement with the harmful RNA, and thereafter it will be a double-stranded mRNA. So, and therefore this double-stranded mRNA will not undergo translation, and therefore this harmful protein synthesis is stopped. Got my point? So our target is to introduce a DNA which will produce an mRNA which is exactly complementary to the harmful mRNA of Melodygain incognitia, and ultimately it will form a double-stranded mRNA, and therefore it cannot undergo translation to produce the harmful protein. यही है ultimate target. Am I clear? तो इसको करने के लिए क्या क्या उपाय है, जरा शुरू करिए आप. Pest resistant plants topic. फेमस स्टेटमेंट डेटा, इस स्टेटमेंट का एजर्शन अगर आता है तो इसका रीजनिंग अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ और इसका क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया नीट में. तो सेंटेंस ये है, आरएनए इंटरफेरेंस ऑकर्स इन ऑल यूकैरियोट एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. ऑकर्स, हाँ कुछ नहीं, ये जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को वो डिस्टर्ब करेगा विद इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, एंड इट विल प्रोड्यूस अ हार्मफुल एमआरएनए. From that it will produce protein which is harmful, and ultimately the yield of tobacco plant will be greatly reduced. ठीक है? अब RNA interference occurs in all eukaryotes as a method of cellular defense. ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इसको assertion कंसीडर करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे, डू नॉट वरी. लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद. ये एक फेमस असर्शन है जिसका रीजनिंग हम लोग करेंगे. चलिए नेक्स्ट. ताले साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. तो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंटरी मतलब उस आरएनए का एक कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड आएगा, अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. चलिए. Now, अब ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए कहां से आएगा? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, आरएनए इंटरफेरेंस में व्हाट वी नीड टू डू इज, और एमआरएनए साइलेंसिंग में what we need to do is we have to introduce, so let's write introduction of an RNA which is exactly complementary to the infective RNA, infective mRNA, to form a DS mRNA, and therefore translation is inhibited.
सो दैट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए अगर बनाते हैं तो ये इन्फेक्टिव एमआरएनए मान के चलिए, ये इन्फेक्टिव एमआरएनए, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए आया तो डबल स्ट्रैंडेड बनाया. सो दिस इज द इन्फेक्टिव एमआरएनए and this is the complementary mRNA which is a normal mRNA. लेकिन अल्टीमेटली क्या बना दिया ये DS mRNA. अब DS mRNA बना दिया, therefore it cannot undergo translation, therefore no translation, therefore no protein synthesis. So चलो, therefore the second mRNA, the new mRNA silences the infective mRNA. यही तो है, इन्फेक्टिव एमआरएनए को साइलेंस करवा दिया. अब चलिए द सोर्स ऑफ दिस एमआरएनए बताओ. तो सोर्सेस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए, नंबर 1, वायरस containing RNA genome. That means RNA virus. That is RNA virus. That means RNA virus. Now this virus is allowed to infect the plant. Virus को plant को infect करने के लिए allow किया गया. And when virus infects the plant, this RNA is exactly complementary to this mRNA. So this RNA genome, the virus is allowed to infect the plant. The virus is allowed to infect the plant, which the mRNA, the RNA of the virus, the RNA genome of the virus is complementary to the infective RNA. समझ में आया? And therefore the same thing will operate. The same thing will operate. Next. Or transposons. Number 2, mobile genetic elements which are called transposons. What are transposons? What are transposons? Transposons are, suppose this is the DNA. Suppose this is the DNA. DNA के अंदर एक सेगमेंट ऑफ जीन मान के चलिए, यहां से लेके यहां तक. इस सेगमेंट में जो जीन्स प्रेजेंट है, if these genes can move, has the ability to move from one DNA to another, those are called transposons. So suppose the genes present in this region on the DNA of the DNA, in this region of the DNA, have the ability to move from one DNA to another. ऐसे genes भी होते हैं. These such genes are called transposons or the jumping genes. These genes are called, they are called mobile genetic elements. NCERT में लिखा है mobile genetic elements or transposons or jumping genes. So ये मूव करेगा एंड मान के चलिए कि ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है इधर, ये जो डीएनए आया, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए आया, मान के चलिए ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए आया, इस डीएनए से, दैट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इस डीएनए विल रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट. सो इसका जो आरएनए आएगा, दिस आरएनए मैं ट्रांसपोजोन का जो डीएनए है, वो जो आरएनए आएगा, वो आरएनए इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द इन्फेक्टिव एमआरएनए. समझ में आया? उसी तरह से ब्लॉक करेंगे इन्फेक्टिव एमआरएनए एंड अल्टीमेटली दिस विल अगेन रिजल्ट इन दिस. गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया?
तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और ट्रांसपोजॉन, डीएनए का वो सेगमेंट जहां पे वो ट्रांसपोजॉन है, वो सेगमेंट को हम लोग अगर उठाए तो उससे जो आरएनए बनेगा, अगर वो आरएनए कॉम्प्लीमेंटरी है तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो बोलो दिलम, तो दिस इज रेप्लिकेशन वाया आरएनए इंटरमीडिएट। इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है, इसी लाइन को एनसीईआरटी ने लिखा है, रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक, बताइए। दिस इज अनदर वन। बोलो, निमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड, है तो અહીં બોલે દીચ नंबर जाएगा तो करना है। नंबर 3, ऐसे कि एक काम किया हम लोग, वायरस से इन्फेक्ट करवाया, डायरेक्टली मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा। नंबर 3, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का मतलब टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। इसको डिजार्म किया जाएगा पहले, है ना, डिजार्म्ड। इस डिजार्म्ड टीआई प्लाज्मिड के थ्रू वी इंट्रोड्यूस ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट into the tobacco plant cell, समझे, and which produce an RNA exactly complementary to the infective mRNA। समझ में आ गया? ठीक। And then again from here the same principle is applied। Clear? Clear? चलो, इसका मतलब ये जो आरएनए है, इसमें एक है सेंस। लेट्स कंसीडर दिस इज द sense, here is the antisense RNA, this is the antisense strand and this is the sense strand। तो इसका मतलब अगर डबल स्ट्रैंड बन रहा है बेटा, तो एक तो सेंस होगा, एक तो एंटीसेंस होगा, ये तो जरूरी है ना, ये तो होना ही है। एक एंटीसेंस होगा, एक सेंस होगा, ये तो कंपलसरी है अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ। चलिए, बस समझ में आ गया? प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए का मतलब है वो डीएनए से जो आरएनए बनेगा, वो आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंटरी, और कॉम्प्लीमेंटरी होने के बाद डीएस बनेगा, उसमें एक सेंस है, एक एंटीसेंस है। इसका मतलब ये है, लैंग्वेज का खेल है उसमें। ठीक है, अब एक चीज पे डिस्कस करेंगे, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस ऑकर्स इन ऑल यूकैरियोट एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये लाइन, ये भी एक जबरदस्त लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स। কি করে রেখেছিস এটাকে? ও মোটটাকেই তো বদলে রেখেছিস, তোরা ইচ্ছা করে করিস না এগুলো? বের করে দেবো ক্লাস থেকে সব কটাকে। গরম লাগছে বল? আমার সাপোর্টার পাওয়া গেছে। এই তোরা ইয়ে अलखल लगा दिए फल। अब देख, assertion क्या बताया मैंने, आरएनए इंटरफेरेंस occurs in all eukaryotes as a method of cellular defense, ताई तो। सो इसका रीजन क्या होगा माय डियर? देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन ये है, हमारे बॉडी में, समझे, हमारे बॉडी में इन मेनी केसेस म्यूटेशंस होते रहते हैं, एंड म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल। ऐसे कई सारे हार्मफुल म्यूटेशंस होते रहते हैं बॉडी में, और वो हार्मफुल एमआरएनए बनाते हैं जहां से हार्मफुल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, लेकिन उसको प्रिवेंट बॉडी खुद करता है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इज सो कैपेबल कि वो हार्मफुल एमआरएनए के खिलाफ
वो खुद कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए बना के उस एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है, सो दैट वी डू नॉट सफर। इन जनरल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग के बॉडी में ये हमेशा होता रहता है, लेकिन हर कोई तो डिजीज नहीं होता। तो इसीलिए अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम इज सो स्ट्रांग दैट इट प्रोड्यूसेस एमआरएनए व्हिच इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द हार्मफुल एमआरएनए। समझ में आया? सो in course of cellular defense, if due to mutations any harmful mRNA is naturally produced within the body, then the cells themselves produce complementary mRNAs against the harmful mRNA to stop the translation. Hence, harmful protein synthesis. समझ में आ गया? This is the entire concept. ठीक, देख लीजिए। আরো আছে একটা ডিজিজ আছে আমাদের, देयर इज अ डिजीज इन कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। कैंसर, इन केस ऑफ कैंसर, मैं जंपिंग जीन का और एक एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ कैंसर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस जंपिंग जीन्स। इन केस ऑफ कौन सा कैंसर? क्रॉनिक हाँ 9 and 22 क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये जो है डिजीज है ना, ये ब्लड कैंसर है। इस ब्लड कैंसर में देयर आर 2 डीएनएस क्रोमोसोम, two chromosomes, chromosome number 9 and 22. Suppose this is a chromosome and this is another chromosome, है ना? Oh sorry, chromosome ही बनाया और उसको sorry, chromosome number 9 and 22। तो ये देख, ये chromosome number 9 for example, ये chromosome number 22 for example। तो इन दोनों के बीच में इसके अंदर डीएनए, और उसी डीएनए में इसके बीच में देखो देयर इज ऐसे इधर से इधर ट्रांसफर होता है, इधर से इधर होता है। इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, इट इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। समझे ना? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 and 22। अगर ये होता है, दिस इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम का एब्नॉर्मलिटी से, एंड दिस पर्टिकुलर जीन्स, ये जो जीन इन्वॉल्व है, दिस इज जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजॉन्स। ये ट्रांसपोजॉन्स है और जंपिंग जीन्स। इधर से इधर एक्सचेंज होता है, समझे ना? इधर भी है, इधर भी है, ट्रांसपोजॉन्स और जंपिंग जीन्स। তোমাদের ক্যান্সারটা আমি পড়াইনি না, এই জন্য এটা বলে দিলাম। ठीक है? तो दिस इज अ केस ऑफ क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जहां पे जंपिंग जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 and 22 टू प्रोड्यूस क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ठीक है, देख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, 2022 में पूछा गया था। अब 25 में इसका बहुत सारे पॉसिबिलिटी है आरएनए इंटरफेरेंस से सवाल पूछने का। और ये एजर्शन में कि
हिसाब से पूछा जा सकता है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बुझते পেরেছো? इसका फोटो लेते हैं। पटिए दे, सभी को भेज दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, जो भी हम लोगों ने करा। इसके बाद का डिस्कशन होगा, मैंने अभी बताया कि जीन थेरेपी, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको थोड़ा घुमा देते हैं इधर। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जीन थेरेपी। द डिजीज इज कॉल्ड स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जहां पे एडीए डेफिशिएंसी के बारे में चर्चा किया गया। एडीए मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, उसका डेफिशिएंसी। तो हम लोग बात करें अबाउट जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी in a 4-year-old girl child in the year 1990, तो उस कंडीशन में इन अ 4-year-old गर्ल चाइल्ड, 4-year-old गर्ल चाइल्ड 1990 में देखा गया था एडीए डेफिशिएंसी। दिस इज एन एंजाइम कॉल्ड एडेनोसिन deaminase. The name of the enzyme is adenosine deaminase enzyme. इसका डेफिशिएंसी क्यों होगा? ड्यू टू डिलीशन ऑफ एडीए जीन। तो एडीए जीन का डिलीशन के वजह से एडीए डेफिशिएंसी होता है। और एडीए जीन का डिलीशन विल रिजल्ट इन व्हाट? एडीए डेफिशिएंसी विल रिजल्ट इन व्हाट? इमैच्योरेशन, इमैच्योर formation of immature B and T lymphocytes. Formation of immature B and T lymphocytes. और immature B और T lymphocytes अगर होगा, this will result in a disease. This will result in immunocompromised condition
called, the disease is called SCID, SCID, full name severe combined immunodeficiency, তাই তো? So severe combined immunodeficiency, this is the name of the disease that will be caused by this. अब इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट हुआ था, माने what can be the probable treatment for this? उसमें यह कहा गया था कि अगर बोन मैरो कलेक्ट किया गया और हम लोग एक वेक्टर के थ्रू उस बोन मैरो का जो सेल है उससे जो लिम्फोसाइट बनते हैं, उस लिम्फोसाइट के अंदर पहली बात तो यह है, सॉरी पहले बोन मैरो नहीं, पहले बोन मैरो से अगर हम लोग लिम्फोसाइट निकालने के बाद उसके अंदर हम लोग अगर ठीक है, हम लोग अगर एडीए जीन इंट्रोड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, प्रेफरेबली रेट्रोवायरल वेक्टर जिससे एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, हम लोग अगर इंट्रोड्यूस करा, तब उसमें क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसका लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं होगा। और हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं, मतलब उस पर्सन को हम लोग पीरियोडिकली एंजाइम एडीए एंजाइम को इंजेक्ट भी कर सकते हैं, दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। नंबर 2 मैंने क्या कहा, बोन मैरो से लिम्फोसाइट निकाल के उस लिम्फोसाइट के अंदर रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू, है ना, रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा, तो उससे जो ये बनेगा एक सीडीएनए, देखो लिखा है माने द डीएनए फ्रॉम व्हिच माने द आरएनए फ्रॉम व्हिच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, है ना, तो सीडीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर की আছে माने आरएनए वायरस, तो आरएनए वायरस जो डीएनए बनाएगा तो वो डीएनए में एडीए जीन रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तब मैं की बोललाम, आई टोल्ड 2 थिंग्स, नंबर 1 तो इसका ट्रीटमेंट नंबर 1 ईआरटी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। In this case, ADA enzyme is periodically introduced into the patient, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि वे एग्जॉस्ट हो जाता है। नंबर 2, सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, lymphocytes are collected from the bone marrow, lymphocytes are collected from the bone marrow, যেটাকে আমরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা বলছি এটাই, lymphocytes are collected from the bone marrow and we use retroviral vectors মানে RNA virus to introduce the gene, RNA containing gene, कौन सा जीन, एडीए जीन, इनटू द लिम्फोसाइट। तो क्या किया हम लोगों ने, लिम्फोसाइट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो एंड देन आरएनए वायरस बा हम लोग रेट्रोवायरल वेक्टर कह सकते हैं, रेट्रोवायरस इज यूज्ड टू इन्फेक्ट द लिम्फोसाइट्स with ADA gene, to infect the lymphocytes with ADA gene, and then क्या होता है, but these lymphocytes, ADA gene आ गया, तो ADA gene आ गया, RNA से आया, now this RNA converts into DNA, changes into DNA, and this DNA is called the cDNA. This method is reverse transcription. This method is reverse transcription. RNA से DNA बनने को क्या कहते हैं, reverse transcription. So the method is reverse transcription and the product is the cDNA. cDNA क्या है, cDNA का मतलब the DNA which is formed from RNA. cDNA का मतलब the DNA which is formed from RNA, ठीक है, तो ये होगा। अब DNA के अंदर जीन है, this cDNA contain the ADA gene, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ADA जीन तो लिम्फोसाइट के अंदर आ गया,
लेकिन प्रॉब्लम ये, द प्रॉब्लम इज द लिम्फोसाइट्स हैव अ लेस लॉन्जिविटी, उसका लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, 5 to 7 days. But the problem is that the lifespan of these lymphocytes, lifespan of the lymphocytes are short, 5 से लेके 7 days, है ना? And therefore the lymphocytes will die. So इसका solution permanent नहीं हुआ. Therefore they will die. Therefore not a permanent solution. लेकिन अगर ये कहा गया कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो से लिम्फोसाइट को आइसोलेट करके उसके अंदर एडीए जीन को इंट्रोड्यूस करा गया, then it can be a permanent cure. Can be. But if number 3 proposed क्या है? If the ADA gene is introduced into the lymphocytes extracted from the bone marrow during the embryonic stage, then it can be a permanent cure. Else permanent cure is impossible. समझ में आया? Is it okay, my dear students? एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा, एडल्ट स्टेज में करके नहीं होगा. 4-5 साल बर्थ होने के बाद करने से नहीं होगा, चाइल्ड में नहीं होगा, एडल्ट में नहीं होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा. और तो इजी ना एग्जिस्ट करना, वो डाई डाउन हो जाता है. प्रोजेक्टर स्टेम सेल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते उस तरह से, समझे? वो मर जाएगा. अगर वो होता तो वो किसी भी स्टेज पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते थे. और জল খেলেও শরীর খারাপ হয়, ঠিক না? কি হবে তোদের দিয়ে বল দেখি, কি করবি তোরা জীবনে? हो गया? कोई दिक्कत? कैन वी प्रोसीड? ओ, फोटो, करेक्ट. इसके बाद तो आराम से चीजें हो जाएंगे, लगभग कंप्लीट है.
अच्छा, अभी एक और चीज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है इसका जो एकदम फर्स्ट बने, ये जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है इसका जो, हाँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट में जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा हुआ है मेरे बेटा, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल एक चीज करना है जिसमें उसका नेक्स्ट पेज में देखिए, नया किताब में 179, उसमें देखिए 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, देखा आपने? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप्स अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को फैसिलिटेट, इन विच पॉइंट्स विल इट फैसिलिटेट अस, तो वो 5 पॉइंट्स एक बार पढ़िए, वो 5 पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें 5th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबायोटिक स्ट्रेस, एकदम। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट पॉइंट से ही हम लोग बताएंगे क्लासे, लास्ट पॉइंट से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे आप देखिए इंक्रीजेस द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, देखते बच्चों लिखा है, इसका मतलब प्लांट अगर मिनरल को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, प्लांट्स अगर मिनरल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, then remember my dear students, then the loss of salts and essential minerals from the soil will be slowed down, will be reduced, that is called leaching effect। क्या कहते हैं? leaching effect। what is leaching effect? it is the loss of minerals from the soil। अगर प्लांट मिनरल को स्लोली प्रॉपरली यूज करेगा तो लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल विल बी ह्यूजली रिड्यूस्ड, तो एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स को हम लोग बढ़ा देते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है वी हेल्प द प्लांट, बने बाय जेनेटिकली मॉडिफिकेशन द प्लांट्स आर हेल्प्ड सो दैट दे कैन यूटिलाइज द मिनरल्स प्रॉपरली। पहले मिनरल का अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा तो लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, और लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल अगर रिड्यूस हो गया then remember the leaching effect will be reduced, the soils will be fertile। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? So this is the point, this is the meaning of that particular sentence, that efficiency of mineral usage by the plant अगर increase होगा, this will reduce the leaching effect। लिख दीजिए उधर साइड में, it will reduce the leaching effect, within bracket loss of minerals from the soil is called leaching effect। বুঝতে পেরেছিস? it will reduce the leaching effect, within bracket loss of minerals from the soil is called leaching effect। Am I clear? क्लियर? बुझेছিস? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग माइक्रो प्रोपेगेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? और अच्छा, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में लास्ट में बात करते हैं। चलो एक बार नेक्स्ट जाओ। अच्छा, आप लोगों को मैंने 12 ड्रग्स का नाम लिखा दिया था, इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में ड्रग्स जितने भी है वो लिखा दिया था नाम, वो लिखाएंगे। अच्छा, एथिकल इश्यूज से पहले पेज नंबर, जीन थेरेपी हो गया, जीन थेरेपी, इंसुलिन हो गया, उस पहले जाओ। हाँ, उसमें देखो एक लाइन लिखा हुआ है ऊपर, वो जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें देखो एक लाइन लिखा हुआ है 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, है ना, फॉर द ह्यूमन यूज। 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। वो 12 आर बीइंग मार्केटेड इन, वो 12 का नाम हम लिखाएंगे, ठीक है? वो 12 आर मार्केटेड, उसका नाम हम लिखाएंगे, जरा होल्ड कीजिए, मैं लिखा दूंगा आपको। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। लिखिए GEAC अप्रूव्ड, GEAC अप्रूव्ड,
On GEAC माने genetically engineered approval committee, that is called GEAC. है तो इसका फुल फॉर्म भी आता है, इसका फुल फॉर्म आया था 2018 नीट में. तो GEAC अप्रूव्ड. लिखिए नंबर 1 coagulation factor 8, coagulation factor 8. Number 2 FSH. Number 3 tissue plasminogen activator, tissue plasminogen activator. Number 4 streptokinase. Number 5 interferon 2 alpha, 2 beta, 2 gamma. तो interferon 2 alpha, interferon 2 beta, interferon 2 gamma. 5, 6, 7. ठीक. 2 beta, 2 gamma. Next, human insulin. Human insulin. 8 number point. Next, एरिथ्रोपोएटिन एनीमिया में दिया जाता है, समझे ना. एरिथ्रोपोएटिन क्योंकि आरबीसी सिंथेसिस करेगा. हेपाटाइटिस बी वैक्सीन কতগুলো 10. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 11. इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2. बस. ल्यूकिन, इंटरल्यूकिन है ना, एक्टिव केमिकल साइटोकाइन, केमिकल एक्टिंग बिटवीन 2 ल्यूकोसाइट्स. बताया था मैंने. बस. These are 12. समझ में आ गया? हो गया ये पार्ट. नेक्स्ट डायग्नोसिस प्रोसेस पे जाएंगे हम लोग. ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डिस्कशन में आएंगे हम लोग, जहां पे नहीं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला पार्ट नया किताब में 162 नाकि 182 सॉरी নতুন পুরনো বইতে বোধহয় 212 ना. तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे. तो इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का रीडिंग शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. चलिए बताइए. पैथोफिजियोलॉजी का मतलब लिख लीजिए. पैथोफिजियोलॉजी इस वर्ड जो है एनसीईआरटी में, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी इसका मतलब द एक सेकेंड, द रिएक्शंस द पैथोजन अंडरगोज विद इन द बॉडी, द रिएक्शंस है ना विद इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी. माने पैथोजन का फिजियोलॉजी, पैथोजन किस तरह से काम करता है बॉडी के अंदर, पैथोजन के लिए वो नॉर्मल है, इसीलिए पैथोफिजियोलॉजी. मोड ऑफ रिएक्शंस ऑफ द पैथोजन विद इन द बॉडी. चलो अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, PCR polymerase chain reaction, enzyme linked immunosorbent assay, है ना. all these are important. चलो इसका मतलब अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका assertion का रीजन है. व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज नेसेसरी. ठीक है, ये अगर assertion है उसका माने अर्ली डायग्नोसिस इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, ये अगर assertion है उसका रीजन है कि बाद में अगर डायग्नोस करोगे उस टाइम पे द लोड ऑफ पैथोजन इन द बॉडी इज सो हाई
दैट रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया? पढ़ो। তাহলে PCR can be used as early diagnosis. It is amplification of the DNA containing gene of interest. चलिए फिर, যেমন एग्जांपल হচ্ছে RT-PCR in case of COVID, reverse transcriptase PCR, তাই তো? চলো, তাহলে HIV में क्या क्या ट्रीटमेंट अभी होता है माय डियर? HIV अगर है, एड्स में हम लोग क्या करते हैं? PCR करते हैं, एलाइजा करते हैं एंड वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं। समझे ना? वेस्टर्न ब्लॉट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, PCR कैन ऑल्सो कंफर्म, वेस्टर्न ब्लॉट कैन कंफर्म, एलाइजा कैन हिंट कि हो सकता है PCR एड्स हुआ है। समझ में आ गया? तो PCR, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, তাহলে PCR can also be used in cancer. তাহলে it is এখন তো it is used in many diseases, many diseases उसमें एग्जाम्पल एड्स, एग्जाम्पल कैंसर, बहुत सारे। आपको सिफिलिस में मैंने पढ़ाया था, है ना? अभी तो बहुत सारे में करते हैं हम लोग। कोविड में करा था हम लोगों ने PCR एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर में ये PCR हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में जरा बात करेंगे माय डियर। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सपोज कैंसर का एक सेगमेंट ऑफ DNA, कैंसर का एक DNA, ठीक है? इस DNA में देयर हैड बीन म्यूटेशंस, ठीक? तो म्यूटेशन होगा मतलब इसका जो RNA है, इसका जो RNA है उसमें क्या होगा? म्यूटेशन हो गया। सपोज इस रीजन पे म्यूटेशन हुआ, इस रीजन पे म्यूटेशन हुआ, दीज आर म्यूटेटेड वंस, ठीक? अब हमने क्या करा, हम लोगों को तो पता नहीं कि म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। वी डू नॉट नो वेदर म्यूटेशन इज ऑकर्ड और नॉट। हम लोगों को पता नहीं है वेदर म्यूटेशन इज ऑकर्ड और नॉट। अगर म्यूटेशन हुआ है तो एक कंडीशन हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट एक्चुअली नो वेदर म्यूटेशन इज ऑकर्ड और नॉट। हम लोग, एक कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोगों को तो ये DNA का सीक्वेंस पता है, तो उसका ओरिजिनल RNA का सीक्वेंस हम लोगों को पता है। ओरिजिनल RNA कौन सा था इससे? दिस वाज द ओरिजिनल RNA। अब इस ओरिजिनल RNA में ध्यान से देखिएगा, ये जगह जो है ये म्यूटेटेड हो गया, ये जगह जो है ये म्यूटेटेड हो गया। हम लोगों को पता नहीं म्यूटेशन कहां हुआ है, बट वी कैन व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसी DNA का एक रेडियो एक्टिव सेगमेंट यूज कर सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस सेगमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक सेकेंड स्ट्रैंड, इसका जो सेकेंड स्ट्रैंड है इसी DNA का, अच्छा इस तरह से देखो, इसी DNA में सपोज RNA छोड़ दो, इसी DNA में सपोज ये रीजियन में म्यूटेशन हुआ है, इसी DNA में, एक सेकंड जरा, ये जो DNA है ना बेटा, ये DNA में मान के चलो इसी पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ है, इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे। दिस इज म्यूटेटेड, दिस इज म्यूटेटेड। RNA से बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज म्यूटेटेड। अब क्या है, हम लोगों को तो म्यूटेशन पता नहीं है, व्हाट वी नो इज दिस सेगमेंट ऑफ DNA। तो उससे हम लोगों ने एक स्ट्रैंड को कंसीडर करा, और स्ट्रैंड को पहले इसको क्या करा, हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, इस DNA को ब्रेक करके हम लोग सेपरेट कर दिया, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड पे सेपरेट कर दिया, क्लियर? दोनों स्ट्रैंड पे सेपरेट कर दिया। करने के बाद व्हाट वी डिड, हम लोगों ने ये स्ट्रैंड को अलग कर लिया, ये स्ट्रैंड को अलग कर लिया। व्हाट वी डिड, वी सेपरेटेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, हम लोगों ने ये स्ट्रैंड को अलग कर दिया। करने के बाद इसी स्ट्रैंड का एक कॉम्प्लीमेंटरी रेडियो एक्टिव फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटरी रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड हम लोगों ने बनाया। इसी का एक कॉम्प्लीमेंटरी रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड हम लोगों ने बनाया, इसी का एक कॉम्प्लीमेंटरी रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड हम लोगों ने बनाया। बनाने के बाद
हम लोग इसी रेडियो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना अभी, अब इसको हम लोग अब, लेकिन हमें पता नहीं कि इस डीएनए में ये जगह पे म्यूटेशन है, ये जगह पे म्यूटेशन है, हमें पता नहीं है, हमने तो नॉर्मल करके कंसीडर करा। इसका मतलब रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड में इस पोजीशन पे कोई म्यूटेटेड জিন नहीं है। এবারে আমি এটাকে কি করলাম, we passed it by a method called autoradiography. Autoradiography. Autoradiography is what? During the infection उसका जेनेटिक मटेरियल किस तरह से चेंज होगा, रेडियो एक्टिव जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो ब्लिंक करेगा। বুঝতে পেরেছো? ওটা ব্লিঙ্ক করবে যখন রিঅ্যাকশনস বডি के अंदर होगा, वो रेडियो एक्टिव सेगमेंट मॉनिटर में ब्लिंकिंग करेगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। वो आपको दिखाएगा कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी हम लोगों को मिला है वो सब ऑटो रेडियोग्राफी से ही मिला है कि ये पर्टिकुलर ग्लूकोज का क्या हुआ है अल्टीमेटली कैसे पता चलेगा हम लोगों को, वो पता इसीलिए चला है क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी हम लोगों ने करा। तो ऑटो रेडियोग्राफी में मॉनिटर में हम लोगों को दिखा रहा है कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव फॉर्म ब्लिंक करेगा लेकिन जहां पे म्यूटेशन है वहां पे ब्लिंक नहीं करेगा, बाकी सब जगह पे ब्लिंक करेगा लेकिन जहां पे म्यूटेशन हो गया वो जगह पे ब्लिंक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है बाकी सब जगह, लेकिन जैसे ही मैंने इसको दिया जो जगह कॉम्प्लीमेंटरी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो जगह कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है मतलब ये जो रीजन है ये रीजन विल नॉट ब्लिंक, ये पार्ट डार्क रहेगा। एंड देयरफॉर वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर मस्ट बी सर्टेन म्यूटेशन दैट हैज हैपेंड जिसके वजह से टोटल स्ट्रैंड दिख नहीं रहा है। Am I clear? That is what is told there. আরেকটা কথা হচ্ছে the radioactive strand of DNA is always called a probe. So what is a probe? It's a radioactive strand of DNA. चलिए पढ़िए फिर से वो लाइन। A single stranded DNA और RNA, देखो सिंगल स्ट्रैंड से हम लोगों ने करा ब्लैक कलर, डीएनए भी कर सकते हैं आरएनए भी कर सकते हैं, जैसे डीएनए से मैंने दिखाया आरएनए से भी हम दिखा सकते हैं। अगर नॉर्मल आरएनए ये है, नॉर्मल आरएनए में म्यूटेशन इधर हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो उस कंडीशन में मैं अगर एक रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ द आरएनए यूज करूंगा उसमें तो वो म्यूटेशन मुझे नहीं मिलेगा, उसमें तो वो म्यूटेशन नहीं मिलेगा, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराते कराते म्यूटेशन की जगह पे काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए चलो बोलो रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ द डीएनए और आरएनए बोलो। एक सेकंड रुक जाए। चलो हाँ बोलो। हाँ तो क्या है कॉम्प्लीमेंटरिटी, वो देखो रेडियो एक्टिव जहां पे होगा, जहां पे म्यूटेशन है वहां पे उसका ब्लिंकिंग नहीं होगा, सो वी कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन एट व्हिच द म्यूटेशन हैव ऑकर्ड। इसी तरह से हम लोग डीएनए का किस रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, जैसे जंपिंग जीन्स हम लोग को कैसे पता चला, इसी तरह से पता चला उस पर्टिकुलर डीएनए इज मूविंग फ्रॉम वन टू द अदर, तो इसी में हम लोग को पता चल रहा है कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अजीब चीज है, ये हम लोग कैसे पता चला, इसी तरह से पता चला, रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी से पता चला। हो गया बोलो। हाँ एलाइजा इज ऑलवेज एंटीजन एंटीबॉडी, इसके बाद में डिस्कशन हो चुका है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से ही एलाइजा, ये तो पता ही है आपको। हो गया, एलाइजा से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन। विद दिस वी कैन आइडेंटिफाई द एंटीबॉडीज, वी कैन आइडेंटिफाई the antibodies produced against the pathogen। ठीक है, हो गया।
ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? अब देख, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेसिकली अपना एक पॉइंट से यूज होगा, वो एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़िए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब मॉडिफाइड एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है ना, ऑर्गेनिजम्स जो है। हाँ, बहुत सारे अच्छे है, लेकिन अभी हम लोग केवल रैट यूज करते हैं। ठीक है, चलो। मैंने माइस, ट्रांसजेनिक माइस, रैट्स नहीं, ट्रांसजेनिक माइस, बोलो। मतलब अगर इंसुलिन का ट्रीटमेंट करना, देखना है इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं, तो ट्रांसजेनिक माइस में हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले एक इंजेक्शन देके उसका बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर हम लोग इंसुलिन इंट्रोड्यूस करके देखते हैं कि इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं। वही है फिर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, नहीं वैक्सीन इज इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल है, पढ़ना पड़ेगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन which is used as an enzyme which is used in the treatment of emphysema, and number 2 alpha lactalbumin, যত কত 2.4 grams per কি জানো আছে, 2.4 grams of protein per liter है ना, of the alpha lactalbumin। तो मतलब मिल्क के बदले में अल्फा लैक्टल्बुमिन इज ऑफ मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू, बुझते पेरेছিস? तो 2.4 ग्राम्स पर लीटर इसका वैल्यू है, समझ में आ गया? तो यही याद रखना है। अभी और एक चीज, वैक्सीन सेफ्टी में जाइए, जहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पोलियोमाइलाइटिस का जो वैक्सीन है, दैट वाज फर्स्ट यूज इन दैट केस, फर्स्ट मंकीज वर यूज्ड in the identification of vaccine, but later on my dear transgenic mice were used। মানে अभी हम लोग ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं। ठीक है, আরেকটা মনে রাখবে, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনে আমরা কিন্তু ইস্ট ইউজ করেছি, we use yeast to produce, है ना। हाँ चलो, কিছুই না, কেমিক্যাল সেফটি ছেড়ে দাও, আর কিছু করতে হবে না। एथिकल इश्यूज में जाइएगा, जीएसी का फुल फॉर्म देखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसका फुल नेम याद रखना है। उसका नेक्स्ट पेज में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस, सॉरी 2 लाख, 2 लाख बासमती राइस वेराइटीज আছে ইন্ডিয়াতে, आउट ऑफ विच 27 हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, তাই তো। और इसमें তোমার কি জানো বলে ওটাকে, बायोपायरेसी इज इंपॉर्टेंट, 2018 नीट का क्वेश्चन था बायोपायरेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन था पूरा सेंटेंस। तो बायोपायरेसी जो है ये अमेरिका के लिए था, बिकॉज अमेरिका चोरी किया था हम लोगों से बासमती राइस का कुछ ये पेटेंट, तो इसीलिए उसके बाद हम लोग बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट आया, और नीचे देखो इंडियन पेटेंट बिल भी लिखा हुआ है, समझे ना। तो यही सब इन्फॉर्मेशन है, यही इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, এটার সাথে যেটা পড়তে হবে, যাদের পুরনো বই আছে তারা 177 এ যাবে, আর যাদের নতুন বই তারা তোমার ইয়েতে যাবে, আগের পাতায় যাও, যেখানে प्लान ब्रीडिंग वाला पार्ट है, माइक्रो प्रोपेगेशन और प्लान ब्रीडिंग वाला पार्ट है ना। तो माइक्रो प्रोपेगेशन और प्लान ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है माय डियर, वो भी 177 में है पुरानो बोईते। बस गुड। तो माइक्रो प्रोपेगेशन वाला पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, वो पहले दूसरी जगह पे था, इसको इंट्रोड्यूस करा गया। उसको बहुत इजी है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, बट बेटा देखिए आप लोगों को पता है कि, हाँ जी, ओ पढ़ा दिया मैम, ओ वाह वाह, तब तो हो ही गया। एक्सप्लांट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आर्टिफिशियली इन विट्रो हम लोग विटामिन सॉल्ट्स ये सब देते हैं, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स, दैट इज फाइटो हार्मोन्स, ये सब देते हैं, है ना, एसेंशियल मिनरल्स देते हैं, एनपीके, द
द रेयर मिनरल्स जो है उसको देते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, तो वो देके फिर हम लोग आर्टिफिशियली उसको ग्रो करवाते हैं। दैट इज एग्जैक्ट क्लोन ऑफ द ओरिजिनल वन, दैट इज सोमा क्लोन्स, है ना, ये तो हम लोग करते हैं। एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, है ना, बिकॉज सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, दैट इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक और मेरिस्टेम कल्चर है। अगर किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट में वायरस इन्फेक्टेड है तो जनरली एपिकल, इंटरकैलरी, ये सब मेरिस्टेम में वायरस फ्री अगर है तो उस पार्ट को काट के हम लोग इसी माइक्रो प्रोपेगेशन का प्रोसेस में डालने से क्या होगा, वो पार्ट ग्रो करेगा इनटू अ कंप्लीटली न्यू प्लांट। तो हम लोग वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से भी ओरिजिनल प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेम कल्चर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि सेल वॉल को अगर दो प्लांट का सेल वॉल का ब्रेक करा हम लोगों ने, तो प्रोटोप्लास्ट को हम लोगों ने लिया along with the cellular elements, लेके उसको हम लोगों ने हाइब्रिडाइज करा in a lab along with the artificial substances that is to be given, देके उसको हम लोग अल्टीमेटली क्या करा, उसको मिक्स करा और ग्रो करा, और ग्रो करके क्या है, हाइब्रिड ऑफ द टू फॉर्म्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पोमाटो। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि पोमाटो प्रेजेंटली इज नॉट यूज्ड बिकॉज वी डू नॉट गेट the effective the desired character of the two plants। देखो लिखा है लास्ट सेंटेंस का, और वो है assertion reasoning कि क्यों पोमाटो हम लोग आजकल उतना यूज नहीं करते, उससे पता चलो, बिकॉज वी डू नॉट गेट द यूजफुल कैरेक्टर्स ऑफ द टू प्लांट्स। लेकिन म्यूल में हम लोग यूजफुल कैरेक्टर्स हम लोग को मिलता है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें क्या है, दीज आर मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक तो नेचुरल सिलेक्शन, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये 2020 नीट का क्वेश्चन था। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल देके पूछा था, उसको हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देके भी पूछ सकते हैं। বুঝতে পারছো আমি কি বললাম? ইজ ইট ওকে? আরেকটা জিনিস চলে যাও, কোশ্চেন নাম্বার 7 বোধহয়, এখন বোধহয় নতুন বইতে বোধহয় 7 না 10 হবে, আর পুরনো বইতে বোধহয় 7। কোশ্চেন নাম্বার 10 কি আছে রে? একদম ঠিক। क्वेश्चन नंबर 10 नतून बोईते एंड क्वेश्चन नंबर 7 पुरानो बोईते। लिख लीजिए, उसके साइड में बहुत लंबा जगह है, उसके नीचे भी बहुत जगह है, लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मे लिखने बांध के लेफ्ट साइड में लिख दे ये क्वेश्चन। लिखो, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती discovered a bacteria called Pseudomonas putida, Pseudomonas, Pseudomonas putida, Putida, scientific name re Pseudomonas putida, within bracket called superbug. He termed it superbug, which has the ability to break lipids and oil. Full stop. So he used it to clear the oil from the water bodies, to clear the oil from the water bodies. ठीक, এটাই তো দিয়েছে, यही क्वेश्चन है। ठीक, एक काम कर, और 5 मिनट है, इसका मॉड्यूल का क्वेश्चंस लाए हो? मॉड्यूल इसका नहीं है? ओके। तुम्हारे किताब में क्वेश्चन नंबर 7, शायद 7 ही तो है, नतून 10, पुरानोटाते ताहले 9 होबे। अरे उस कौन सा चैप्टर देख रहा है तू? में मैडम, तो कहां का चीज कहां लिख दिया? कोई बात नहीं, पेज नंबर मेंशन करेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर पे गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, चलो डन हो गया। समरी को ध्यान से पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, समरी को ध्यान से पढ़ लीजिए। एंड बायोटेक इज ओवर।
मैं 2-3 दिन क्लास नहीं लूंगा, आई वोंट बी अवेलेबल। I'll ask her to do breathing and exchange of gases. समझे ना? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस हल्का चैप्टर है, दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक्सप्रेशन आई टीच हमारा सिलेबस शेष होएगा तो तले तब तो हम लोग हाँ सिलेबस खत्म होना बहुत जरूरी है बेटा, और सही से खत्म होना। सिलेबस खत्म करने के लिए खत्म नहीं होना है, सही से सिलेबस खत्म करना। आप लोग कब शुरू किए थे क्लासेस? 5 सितंबर से क्लास शुरू हुआ, सोच आज जनवरी 24 और 10 दिन का क्लास मान के चलिए, फरवरी फर्स्ट वीक सिलेबस ओवर। स्पीड समझे किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाया? टोटल सिलेबस इतना इजी नहीं है, आप लोग भी पढ़े, ऐसा नहीं है। उन लोगों का हो गया, फेज 1-2 का हो गया। अब मैंने फेज 1-2 नहीं, 1-2 नहीं हुआ, फेज 3-4 का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, लेकिन 5-6 का सिलेबस खत्म हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं ना उसमें, सबसे पहले सिलेबस निपटाते हैं, सही से कर, प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी आप लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सर को मैं बोल दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। 11 का फुल सिलेबस वाला नाम लिख के सौरभ चक्रवर्ती सर या तो अपना ये सौरभ चक्रवर्ती सर रहेगा, नाम लिख के दे दो कौन कौन देना चाहता है। लेकिन इवेल्युएट आप खुद ही करोगे, समझे ना? एग्जाम देने के लिए, माहौल के लिए इधर बैठ के एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इवेल्युएट आप लोग ही करोगे। 29 थे, ओ তোদেরই পরীক্ষা তো, ও তোদেরও তো পরীক্ষা আছে, তো দেখ लेना एग्जाम कितने बजे है तुम लोगों का, बस তারপরে দিয়ে দেবে, 2টো থেকে 5টা দিয়ে দেবে, কি 3টে থেকে 6টা 20 দিয়ে দেবে, যে যেটা দিতে চাও। इफ यू वांट टू गिव यू कैन, मेरे तरफ से पूरा छूट है, यू कैन डेफिनेटली गिव। एग्जाम देने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं, आप लोग हमेशा दे सकते हो उसमें। हालांकि आपका 2 चैप्टर हुआ नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। आप पढ़े हो तो डेफिनेटली यू हैव द आइडिया। एल्जाइमर्स जो है, डोपामिन सिंथेसिस का प्रॉब्लम। एल्जाइमर्स इज सॉरी एमाइलॉइड प्रोटीन का सिंथेसिस। एल्जाइमर इज एमाइलॉइड प्रोटीन का सिंथेसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑल्सो म्यूटेशनल डिसऑर्डर, वो फिनाइलएलेनिन का म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग समरी को पढ़ते रहिए, ठीक है, मैं थोड़ा काम कर लेता हूं। ठीक है, चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन निपटा देना बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन निपटा देना, ठीक है। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। आज घर जाके मॉड्यूल का क्वेश्चन निपटा देना, कल मैं सबको भेज दूंगा, क्वेश्चन करवा देंगे। टुमारो आई एम नॉट एबल। ठीक, थैंक यू।